सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो सर आप बताइए मैम के लिए आप वैलेंटाइंस डे क्या करने वाले हैं आप? क्या that's a surprise कि क्या करने वाले हैं? Are you saying कुछ नहीं? कुछ नहीं. We are traveling somewhere to be with our family and all. Yeah. So I don't think. I have a plan. अच्छा you have really सिर्फ इंटरव्यू के लिए है या सच में भी है? सच में. Diamond How ring can you तो say ले you're लो. not doing anything? How can you say? Buying the house. Let's see. It's a surprise. ओके आपकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, तो क्या मतलब आप क्या क्या प्लान करते हैं मैम के लिए? क्या क्या कुछ करते हैं कि नहीं मतलब? What do you say? What are you doing? I'm laughing. You're Say laughing that like you. this. No, she's the one who plans things. ये basically plan करते हैं. I'm not a person who like plan things. Okay. So she's more of a planner. तो मैम आप क्या प्लान करते हैं सर के लिए? मैं एक्चुअली ज्यादा सरप्राइजेस नहीं देती बिकॉज ही डजंट लाइक सडन थिंग्स या सडन प्लान्स, सो ही इज नॉट वेरी स्पॉन्टेनियस व्हेन इट कम्स टू लाइक कि कुछ बता दिया कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है. सो इट्स लाइक सो आई डोंट डू मच सरप्राइजेस बट डेफिनेटली यू नो समटाइम्स आई गिव हिम सरप्राइज तो उसको शॉक हो जाता है. सो वी डू समटाइम्स यू नो लाइक आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर हिम और तो आप प्रेम दिवस कैसे मनाते हैं? मतलब प्यार दिवस, वैलेंटाइन डे कैसे मनाते हैं? मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं. और प्रेम दिवस तो देखो ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जिस दिन प्रेम दिवस है उस दिन ही आप प्रेम मनाते हो. प्यार तो ऐसी चीज होती है कि आपको यू नो 365 डेज मनानी चाहिए और हमेशा प्यार में रहना चाहिए. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन और प्रेम दिवस वाले दिन. Now we have crossed that like you know age also. यहाँ पे सिर्फ उसी दिन उसी दिन आपके लिए सारा प्यार निकले और प्यार बरसे. So basically मैं बोलती हूँ कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे because आज Valentine's Day and too much crowd will be there everywhere, so we will not go anywhere. We will sit home, have dinner, watch a movie, spend time with each other, kick our phones aside, and वैसे भी कोई कॉल नहीं करता, so we'll be together. We'll just like have good quality time. Rather than going out भीड़ भाड़ में आवाजों में, we like to be with each other and yeah. आप दोनों की जर्नी कैसी शुरुआत हुई? मतलब लव प्यार कैसी शुरुआत हुई? थोड़ा सा अगर आप बता सके. मैम को आपने प्रपोज किया कि मैम ने प्रपोज किया? नहीं, एक्चुअली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में when we were doing a show called Arjun. It was on Star Plus. So we met there. एक मॉक शूट था वहाँ पर. पहली बार मैंने शीना को देखा था. और देखा नहीं था. हाँ मतलब देखा था. इग्नोर किया था. इग्नोर नहीं किया था. I saw her, but you know मेरे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं because I am little introvert and reserved and introvert, and she is the one like who's more talkative and more like you know up there. Vibrant. So she started conversation. And वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद we became very good friends and हमारा जो मतलब ये था was truly based on a wonderful friendship because we are poles apart and very. She was madly in love with me. She was madly in love with me, and मेरा ऐसा था because I had already been in relationships. Yeah, so I was you know taking my own time to. Because she was very. I was very young. I was 19 years old. That's what I'm saying. She was very young. Yeah. So I didn't want to break her heart. कि मैं you know कोई भी conversation start करूँ and you know I don't take it where it should go. So I was taking my own time and she was in hurry. So basically that's how. I was not in hurry. I just liked him, so I said that you know I like you. So then he's like, हाँ, तो मतलब you know so I was like अरे I like you मतलब I like you so what हाँ तो मतलब what are you thinking? She's like, you know, I don't want to break your heart, but you know, let's take this slow. अभी तो मिले ही हैं and all. And I was like, okay. I meant only let's be friends, let's talk to each other more, let's meet each other. But I don't know what was going on in this. And honestly, वो जो show था वो बहुत ही कम पीरियड का शो था और उसके पहले मैंने देख लिया था कि जनरली क्या होता है कि केमिस्ट्री सेट पर बहुत अच्छी होती है बहुत सारे लोगों के साथ में and then when show ends तो फिर आपका मिलना जुलना कम हो जाता है. तो मुझे लगता था कि इसको मैं because she was very young, she was 18 or 19 at that time, तो मैं नहीं चाहता था. I didn't want to give her false hopes कि ये you know बाद में मैं मिल नहीं पाऊँ. तो वो so and in fact the last day I was crying on shoot. So this is like we were just friends, we knew each other सिर्फ उतने टाइम तक 3-4 महीने जब तक शो चला था. So we like मैंने बोला भी कि you know it's the last day of shoot and you know so he said why are you crying?
So I said that I'm not crying because the show has ended. Obviously बुरा लगता है कैरेक्टर को अपने आप में से निकाल के साइड कर देना टाइप्स, but then you get another show, you get busy with life, life moves on. But I was like, I'm upset क्योंकि now I don't get to see you set पे, जैसे हम खाना खाते थे साथ में, whatever incidents or moments we spent together. So I was like, now I can't do that, because I have that friendship with you which will go away now. So he's saying, yeah, actually I don't know much that if I can pick up the phone after shoot and and I was very very honest because कुछ sense नहीं होता कि आप किसी को false hopes दो, and तो I was very very practical कि यार he was not sure about me basically. हाँ, इतना टाइम आपको पता नहीं होता कि आप इतना टाइम एक टाइम के बाद इतना टाइम स्पेंड कर पाओगे नहीं. So I didn't want to give up false hopes. तो शो तो बंद हो गया, तो आगे की शुरुआत कैसी, मतलब डेट में कैसे गए आप लोग, मतलब I'll tell you, आगे की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा जो परसेप्शन था लेके चीजों को वो वही था जो मैंने अभी बताया, बट आई थिंक शी वाज वेरी वेरी कमिटेड, और उसने जिस तरह से एफर्ट्स किए to make the relationship, to make the friendship grow. So वो efforts का नतीजा है कि आज हम 7 साल के बाद आपसे बात कर रहे हैं. And in fact one incident that I will share was both the manifestation and like what you say वो हो जाता है. In fact you won't believe कि हम shoot कर रहे थे. You want to tell that incident where I said that you're my husband and tell that incident from your mouth. Everyone knows that. No one knows that. Basically जब हमको शायद कुछ हफ्ते ही हुए थे of knowing each other, so we were doing a scene in that show. तो वहाँ पर there was one more chick who was constantly trying on me. तो one more chick who was constantly trying on me, just see his framing. Yeah, so we all were doing a scene and suddenly she started talking about my eyes, that is this your real eye, are you wearing lenses, beautiful eyes, this and that. Then I was like, yeah, I was just taking it very casually. Then she had a chat with someone else and she came to me and she said, she was also standing there. So she said that, are you guys dating each other? So till that time we were not dating. No one was dating anyone. No one was dating, but we were spending time together. No, we were then suddenly she told her that, yeah, he's my husband. Oh. And that girl got a shock of her life. What, like, I just started trying and he's saying that we are not dating and she's saying that he's my husband. He's my husband. And I said it with a straight face. Like the thing was कि 4 बार उसकी आंखों के बारे में पूछ चुकी थी. अब इतने पास बैठ के भी उसको नहीं दिख रहा कि contact lenses नहीं है, then she's stupid. No, I'm just saying. So she can't see कि contact lenses नहीं. I mean, it's just funny to me. It's okay. So she was trying and I was not offended or something. But I was like, stop it. He's my husband. And I just did it out of fun because that's how I am. मतलब I pull pranks and I'm like very hilarious. and उसकी एक बात जो मैंने बोली थी कि he's my husband and it turned out to be after a certain time he actually was my husband. Okay, मैम तो इतनी आपके लिए बहुत कुछ बोल रही है मैम, तो मैम इतनी वोकल है, तो मैम की एक सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो आपको पसंद है, यू आर टेलिंग नो, लेकिन मैम तो पहले से कमिटमेंट थी, तो एक अच्छी क्वालिटी मैम की जो आपको हाँ में कह दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो शी इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, तो एक तो क्वालिटी अभी आपने बोला ही था, तो सबसे बड़ी ये भी किस्मत है, ठीक है. तो एक तो ये चीज है शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सेकंड थिंग दैट जितनी ये loud और vibrant और ये सब दिखती है, she has a very very emotional side also of her, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, जो बहुत ही close है शीना से, उन्हीं को मालूम है. So I explored that side more, और वो मुझे समझ में आया कि इसका कमिटमेंट देखकर जब मैंने इसके मुझे सुना that he is my husband, तो मुझे एक बार तो मुझे शॉक लगा. I told that girl that she is mad. ऐसा नहीं. But then when I went home and I was thinking about that incident, then I thought कि wow, मतलब it takes guts ये सब सोचने में और सोच के बोलने में इतना जल्दी होगी. So बहुत guts हैं शीना में, and she has a very very caring and emotional side of her, जो बहुत close लोग हैं उन्हीं को मालूम है. तो I think that is her biggest quality. And not only commitment to like him, but his family, उनकी family की family, like commitment to everything. Animals, commitment to dogs also, puppies who are in my like building, every day का commitment to them, to like
care for them, feed them, do everything. So commitment to anything has to be a commitment to something. Even if it's work, it is like if it's my commitment, I have to do it with 100% honesty. ओके जैसे कि सर इंट्रोवर्ट है, सर दिख रहे भी है, अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो आपने कैसा इजहार मतलब करवा लिया? मैंने शादी करवा ली। और शादी मैंने नहीं, एक्चुअली रोहित की मम्मी ने ही बोला कि वो तो बहुत नहीं, बट बात की बात है क्योंकि हम थोड़े टाइम तक फ्रेंड्स थे एंड ही वाज शूटिंग इन उमरगांव फॉर 2-3 shows and everything, so we used to hardly talk and all. So actually रोहित की मम्मी ने बोला कि अब हो गया टाइम, भाई साहब 5 साल हो गए, अब इसके बाद या तो साथ रहो या तो निकलो अपने अपने रास्ते, या तो मैं कोई ढूंढ लूंगी इसके लिए. So that's when I guess 10 days या वो तो एक अलग चीज थी, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि घर वालों को तो होता ही है कि आप इफ यू डेटिंग, घर वालों की वजह से ही शादी हो गई. रोहित के घर वाले, मेरे घर वालों के, मेरे मॉम डैड ने बोला नहीं बहुत छोटी है अभी तो, ये इतनी यंग है, अभी तो बहुत ही छोटी है, तो 31 तक हम शादी करेंगे. तो देन आई गॉट अ डेडलाइन फ्रॉम हिज मॉम, शी सेड कि करनी है तो करो. वेरी स्वीटली मतलब शी आल्सो एक्सेप्टेड, वेरी स्वीटली शी एक्सेप्टेड you yeah, very sweetly I accepted because she wanted to get married. No, generally also I wanted to settle down in life and मतलब मेरा कमिटमेंट था, मुझे लगा कि he is a person जिसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ, तो अभी नहीं तो बाद में कोई और क्यों ढूंढूं फिर, इतना हैंडसम एंड लविंग एंड लाइक यू नो हु लिसन्स टू मी एटलीस्ट तक तो सुनता है बहुत. तो मैंने सोचा कि आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या पता आगे का कुछ नहीं पता. सो आई वाज लाइक आई हैव टू ग्रैब हिम एंड कीप हिम फॉरएवर before someone else does. ओके सर के साथ अगर नए नए आर्टिस्ट एक्टर्स के को-स्टार के साथ भी काम आते हैं तो कब तब आपको जेलस फील होता है कि? कभी नहीं, मुझे कभी जेलस फील नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है कि वाओ क्या केमिस्ट्री है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे रोहित के शो का धड़कन अदिति है तो ये दोनों के जब भी कोई क्लोज इंटीमेट सीन्स होते हैं, सबसे पहले मेरी स्टोरी आती है सीटी मारते हुए. तो आई एम द वन हु इज वेरी सपोर्टिव एंड आई नो दिस इज हिज वर्क एंड ही लव्स इट एंड देयर इज नथिंग लाइक कि ये पर्टिकुलर सीन है सो आई नॉट टेल हर और समथिंग, ऐसा कुछ होता नहीं है. मेरे को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, बट व्हेन आई सी इट ऑन टीवी इज द टाइम आई सी इट एंड आई थिंक आई एम वेरी लाइक हैप्पी दैट ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब विद फुल डेडिकेशन. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आई विश आई वाज देयर, but then it's like it's our job, so it's a part of life. तो आप दोनों एक साथ सॉन्ग में कभी आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे? Yeah, 100%. We were planning, पहले भी हम प्लान कर रहे थे, but then this corona happened, फिर वो कुछ काम हो नहीं पाया. Then after जो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट I started shooting for धड़कन. So obviously ये दिमाग में है एक एल्बम साथ में करने का. Let's see when it happens. कभी आप दोनों एक साथ बिग बॉस के घर पे आप जाएंगे? मतलब टाइम भी मिल जाएगा, समय भी मिल जाएगा, लड़ाई भी हो जाएगी, लड़ाई नहीं मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे तो हर बार पूछते हैं. हाँ, इसको बिग बॉस में क्या होता है उसके बाद इसको बिग बॉस में इंटरेस्ट है. मुझे बिग बॉस में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई थिंक मैं एज एन एक्टर ही काम करना चाहता हूँ, और रियलिटी शो इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड दैट टू अ शो लाइक बिग बॉस जहाँ पे आप जाके पूरा एक्सपोज हो जाओ. आई डोंट वांट दैट. और शिंगर इज आपको मैं बिल्कुल ही नहीं. व्हाट इज दैट टू गेट एक्सपोज्ड? आप जो हो आप हो. आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू कीप दैट यू नो द मिस्ट्री टू हिमसेल्फ, दैट मिस्ट्री ऑफ बीइंग एन एक्टर टू माय सेल्फ. ओके मैम, आप जाना पसंद करेंगे अकेले ही या साथ में? चलो तो बहुत ही अच्छा है, 4-5 दिन बाद वापस घर ही तो आना है. कोई भी लाए ट्रॉफी लाए. नहीं, अरे नहीं, इनिशियली ओनली ही विल टॉक वेरी लेस एंड आल्सो एक ही हफ्ते में ही विल बी एविक्टेड, और इधर ही विल बी द साइलेंट किलर एंड बी टिल द एंड एंड विन इट. सो आई फील ही हैज दैट क्वालिटी ऑफ विनिंग, बट आई फील कि मेरा तो आई थिंक जैसी मैं हूँ आई थिंक वैसी मैं रहूंगी शो में भी. So I think that I would be a pretty good contestant to be in Big Boss. Yeah. Like very interesting to watch. I don't think I have anything which I can give. No, ऐसा कुछ नहीं है. कोशिश तो करके देखो. Thank you so much. क्या मैसेज देना चाहिए इस वैलेंटाइन डे में, जैसे कि आपने 19 इयर्स में कमिटमेंट कर लिया था, आपने भी मतलब 19 इयर्स में कभी कमिटमेंट मत करो. मतलब बहुत बड़ी बात होती है 19 इयर्स में मतलब कमिटमेंट. हाँ एक तो कुछ आप बताइए मैम. आप ही बताइए मैम. तो मैं बोलना चाहती हूँ कि यू नो स्प्रेड लव और अपनी फैमिली से एवरी थिंग दैट्स अराउंड यू, स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी, बी हैप्पी.
and give love all around and celebrate it the way it should be. And yeah, and do tell your loved ones that you love them on this particular day, especially so that they know कि हाँ they love us. So it's sometimes बहुत जरूरी होता है आपके grandparents को या किसी को बोलना कि you know I love you. It really means a lot to them. So I think yeah. सर आप बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा मैम के लिए गाना गा दीजिए आप। जो भी इन्होंने बोला है उसको फॉलो करिए, स्प्रेड लव, ना सिर्फ इंसानों से जानवरों से भी प्यार करिए, जो कि मैं भी कुछ टाइम से मैंने सीखा है, एंड यू गेट दैट लव बैक अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वो करिए, और रिस्पेक्ट करिए बड़ों की, सब लोगों की, जस्ट स्प्रेड लव एंड जस्ट फॉलो व्हाटएवर शी सेड। Thank you. Thank you so much.